welcome you all to this second video lecture of Advanced Java Programming. In previous video lecture, we have seen our chapter 1 or unit 1, which deals with concept of threading in Java. In last lecture or in last video, we have already seen the concept of thread, how to create a thread or what is thread life cycle. All these concepts are discussed in our previous video lecture. Now in this video lecture we are going to see the first two topics of this unit 2. That is, one is collection interface and another one is array list class. Now what is collection interface? Actually, as all of you know, to import the predefined packages of Java, import keyword is used. So java.util.collection interface is a fundamental part of Java collection frameworks. Now what is Java collection framework? That is also important. Now what is Java collection framework? So the Java collection framework provides a comprehensive set of classes and interfaces for working with collection of objects. I think all of you are familiar with classes and objects. What is class? Class is a collection of elements which are having different data type with some methods. And what is object? Object is a variable whose data type is some class. So the collection interface is a fundamental part of this framework, serving as the root interface for most other collection related interfaces. It defines the core methods and behaviors that all collection classes should implement. All collection classes means what? There are several inbuilt classes like array list class is there, queue class is there. So to use these classes, this framework acts as a root interface for most of the collection related interfaces. So the collection interface is part of java.util package. All of you know that to read the element in Java, we are using scanner class. Now if I want to use scanner class, normally we have written that scanner sc is equal to new scanner of system.in. So what is it? That you are creating object of a scanner class, and scanner class is also part of util. So I have to import java.util.scanner or java.util.star. Star means everything, and if I want to import a specific class, then it is necessary to write like import java.util.scanner and all the things. So the collection interface is part of java.util package and represents a group of objects known as elements. It doesn't directly implement any class but serves as a base interface for several other interfaces such as list, set, queue. These are some of the examples. These interfaces further extend the capabilities of collections to match your specific requirements. आपके जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहेंगे उसके साथ मैच करने के लिए ये इंटरफेस फर्दर एक्सटेंड हो सकते हैं. हम एग्जाम्पल के वक्त उसको देखेंगे कि हाउ दीज इंटरफेसेस आर फर्दर implemented or extended. So it provides a common set of methods to work with collection of objects. Collection can hold elements like lists, sets or queues. Now what are the common methods? कौन से कॉमन मेथड्स है हर कलेक्शन के साथ वर्क होने वाले? पहला कॉमन मेथड है साइज विच रिटर्न्स इंटीजर साइज मीन्स व्हाट? दिस साइज रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू. So size is one of the some methods are given here. Size is one of the method which returns the number of elements in the collection, whether it is a queue or it is an array. It will return the number of elements which are present in that particular collection. Second is Boolean. Boolean is one of the data type
इन जावा, ट्रू फॉल्स, ऑन ऑफ, यस नो, इसके लिए ये डेटा टाइप यूज होती है. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस डेटा टाइप. सो बूलियन इज एम्प्टी. So if the particular collection is empty, then it will return something, and if it is not empty, then also it will return something. So it will return either 0 or 1. Next thing is Boolean contains. Contains means whether that particular collection contains a particular element or not. Here objects are nothing but the parameters which are passed to that particular method. So what is contains? It checks if the collection contains a specified element. आपने जो एलिमेंट सपोज एक एरे है और उसमें आपको 10 सर्च करना है, whether that is present or not. So using collection is a different thing and using array is a different thing. वो बाद में हम एग्जाम्पल के वक्त देख ही लेंगे. Then next thing is Boolean add element. It adds the element to the collection. आपकी जो भी डेटा टाइप है वो डेटा टाइप का वो कलेक्शन में वो एलिमेंट ऐड कर देगा. रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द कलेक्शन. देन रिमूव ऑल. रिमूव ऑल मीन्स व्हाट? नॉर्मली कई सॉफ्टवेयर ऐसे है. फॉर एग्जाम्पल नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर है. इफ आई वांट टू क्लोज वन विंडो इट विल क्लोज वन, अदरवाइज if I want to close all windows, it will close all windows. If I want to close all windows except the current window, then also it will work. So like that, removing a particular element means removing one element from the collection. Remove all is used to clear the collection. जितने भी एलिमेंट होंगे उस कलेक्शन में वो सभी करंट कलेक्शन में के जो एलिमेंट है उनको डिलीट कर देगा या रिमूव कर देगा. Next one is iterator. It returns an iterator over the elements in collection. Iterator is a separate topic in this particular unit. So we will see this later on. Then Boolean equals compares the collection with another object or quality, equality or equality. जैसे कि हम नॉर्मली इनहेरिटेंस में देखते हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू प्रोसेस मेंबर्स ऑफ वन क्लास बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास. तो उस तरह से अगर आपका करंट ऑब्जेक्ट दिस ऑब्जेक्ट आपको किसी और ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करना है तो इट इज पॉसिबल टू यूज इक्वल्स मेथड. इक्वल्स मेथड हम यूज कर सकते हैं. देयर आर सम अदर मेथड्स आल्सो. यहाँ पे मैंने इतने ही डिस्कस किए हैं. कुछ है इटरेटर भी वन ऑफ द मेथड है शायद. इट रिटर्न्स एन इटरेटर ओवर द एलिमेंट्स इन द कलेक्शन. इक्वल्स है कंपेयर द कलेक्शन विथ अनदर ऑब्जेक्ट. हैश कोड भी है. हैश कोड, हैश मैप, ये भी हमारे टॉपिक में है. दैट वी विल सी लेटर ऑन. सो देयर आर सो मेनी मेथड्स विच आर प्रेजेंट इन दिस. सो आई हैव टू एक्सप्लेन वन सिंपल प्रोग्राम जिसमें कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको बाद में पता चलेगी. बाद में पता चलेगी मीन्स व्हाट कि यहाँ पे तो यूज़ किए है लेकिन हम पढ़ेंगे बाद में. जैसे कि हैश सेट है, एरे लिस्ट है. ये खाली एक एग्जांपल दिया है और एग्जांपल देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या है. सो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार. मैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इफ़ आई वांट टू यूज दिस देन इट इज़ नेसेसरी टू import this java dot util dot star means all the methods. Then my class name is collection interface example, so that my program name is also collection interface example dot java. You can write anything instead of this. It is just for इसे हम कहते हैं, क्या नाम है उसका, actually I am not remembering that. Giving name to the program. आपके प्रोग्राम का नाम कुछ इस तरह से चाहिए कि प्रोग्राम का नाम देखते ही पता चल जाए कि फॉर व्हाट पर्पस दिस प्रोग्राम इज रिटन. देन यहाँ पे आता है हमारा मेन. यहाँ पे मैंने लिखा है लिस्ट स्ट्रिंग नेम लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट. क्या लिखा है कि एक लिस्ट है जो कि एरे लिस्ट है, डेटा टाइप स्ट्रिंग है और उस लिस्ट का नाम है नेम लिस्ट. साइज स्पेसिफाई नहीं की है.
So it is possible to, now by using this name list, it is possible to add the elements in the list as per your given data type. तो यहाँ पे मैंने 4 एलिमेंट ऐड किए हैं, यशवंत, कॉलेज, नांदेड़, एमएस। और उसके बाद मैंने एक फॉर लूप लिखा है। बाय यूजिंग दिस, एज ऑल ऑफ यू नो, देयर आर वेरियस वेज ऑफ राइटिंग द फॉर लूप। सो यहाँ पे ये फॉर लूप का अलग वे है, स्ट्रिंग नेम कोलन नेम लिस्ट मीन्स for all the names or for all the string names which are present in the name list, you have to process the for loop. तो अभी तक हमने क्या किया है इस प्रोग्राम में, तो import java.util.star ये क्या करता है कि it is importing necessary classes for java.util.package which contains classes and interfaces for working with the collections including list, set, queue and all the things. नेक्स्ट हमने क्या किया है, कलेक्शन इंटरफेस नाम का उस प्रोग्राम का नाम दिया है। देन हमने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो कि नॉर्मल है। उसके बाद जो हमने लिखा है लिस्ट स्ट्रिंग, हियर वी डिफाइन अ क्लास नेम्ड कलेक्शन इंटरफेस एग्जांपल। इनसाइड द मेन मेथड वी क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अरे लिस्ट क्लास, and which is that instance? Instance is nothing but the object, and what is that object? Object is a name list, and assign it to a list reference named name list. We add several names to this list using add method. तो उसके आगे ही हमने क्या किया है कि 4 अलग अलग जो नेम्स है वो नेम्स हमने उस लिस्ट में ऐड किए, and then we use a for each loop to iterate over the name list and print each name. This demonstrates how the elements of this particular collection is accessed. तो ये हो गया लिस्ट का कलेक्शन। देन आगे अगर आप देखोगे हमने क्या लिखा है, सेट इंटीजर नंबर सेट इज इक्वल टू न्यू हैश सेट। हैश सेट इज अ सेपरेट टॉपिक, और हैश सेट में क्या होता है देखो कि व्हेन आई इंक्लूड अ वैल्यूज इन हैश सेट इट विल नॉट अलाउ द डुप्लीकेट वैल्यूज। लिस्ट में आप डुप्लीकेट्स ऐड कर सकते हो, लेकिन हैश सेट में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। प्रोसीजर सेम है, यहाँ पे हमने नेम लिस्ट लिया था, यहाँ पे हमने नंबर सेट लिया है। नंबर सेट डॉट ऐड 10, नंबर सेट डॉट ऐड 20, और उसके बाद अगर मैंने लिखा कि नंबर सेट डॉट ऐड 10, देन इट विल इग्नोर दैट 10। Why? Because this 10 is already present in the number set, and number sets is not an array list, it is now hash set, and property of hash set is it will not allow the duplicate values. यहाँ पे भी मैंने वही किया है, फॉर इंटीजर नंबर इन नंबर सेट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर। डेटा टाइप क्या है, अब यहाँ पे इंटीजर है, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ली थी। तीसरा भी एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है, वो है क्यू का। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ अरे, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ट्री, ग्राफ। व्हाट आर दीज? दीज आर द डेटा स्ट्रक्चर्स। टू ऑर्गेनाइज द डेटा, सम ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड। अरे, you can insert element at any position, you can delete element from any position. Stack, you can insert element from stack top only, you can delete element from stack top only. That's why it is having last in first out technique. क्यों क्या अलग है? You can insert element from one end, you can delete element from another end. So whatever may be the element which is initially inserted into queue, that will be deleted on priority, और वो पहले निकल जाएगा। यहाँ पे भी मैंने क्यू डॉट ऐड, क्यू डॉट ऐड, क्यू डॉट ऐड किया है, और फिर वाइल नॉट क्यू इज एम्प्टी, यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिया है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉर लूप हमने यहाँ पे वाइल लूप लिया है। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता तब तक क्यू डॉट पोल, पुश एंड पॉप, ये दो ऑपरेशन, सॉरी पुश एंड पुल, दीज आर द ऑपरेशंस विच आर ऑन क्यू। तो आपको अगर एलिमेंट निकाल के प्रिंट करने हैं तो यू हैव टू यूज क्यू डॉट पुल मेथड, पुल। सो इट विल डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स विच आर, मीन्स मेरे अब इस प्रोग्राम का व्हाट यू कैन से आउटपुट क्या आएगा, लिस्ट एलिमेंट्स,
देन इट विल डिस्प्ले यशवंत कॉलेज नांदेड़ एमएस। उसके बाद आएगा सेट एलिमेंट्स, इसमें आएगा 10 20, ये 10 डबल नहीं आएगा, ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट थिंग इज क्यू, क्यू में जो भी मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐड किए हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको ऐड होके मिलेंगे। नाउ वी विल सी द प्रोग्राम। अब हम ये प्रोग्राम देखेंगे कि किस तरह से लिखा गया है। नाउ सी दिस इज द प्रोग्राम, ये हमारा प्रोग्राम है। नाउ इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम सेम है जो मैंने जो C++ के वीडियोस बनाए हैं ना, उसमें मैंने प्रोग्राम्स टाइप करके दिए, बट इट इज़ समवॉट डिफिकल्ट टू टाइप द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट इट इन जावा, सो आई हैव रिटन द प्रोग्राम एंड देन प्लेस इट इन अ नोटपैड सो एज टू गेट द रिजल्ट डायरेक्टली। अब वन मिनट, now I think my screen is visible। मैंने पिछले बार भी एक डायरेक्टरी बनाई थी जावा प्रोग्राम्स की, उसमें मैंने ये कलेक्शन इंटरफेस एग्जाम्पल डॉट जावा नाम का प्रोग्राम मैंने पहले एग्जीक्यूट करके देखा है। जावा सी कलेक्शन इंटरफेस एग्जाम्पल डॉट जावा कलेक्शन इंटरफेस एग्जाम्पल। सो एज यू सी, वो जो प्रोग्राम था उसी प्रोग्राम का ये आउटपुट है, दैट यशवंत महाविद्यालय नांदेड़ एमएस सेट एलिमेंट्स 10 20 10 हमने 3 बार ऐड किए थे, बट एज इट इज़ अ हैश सेट इट विल नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। हमने ऐड ज़बरदस्ती लिखा भी प्रोग्राम में तो ऐड नहीं करेगा, और क्यू एलिमेंट हमने देते फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये तीनों भी हमारे रिजल्ट्स आ गए बाय यूजिंग 3 डिफरेंट कलेक्शंस, लिस्ट, सेट्स एंड क्यूज। So this is just the example, this we have to see later on in detail। ये हमको आगे डिटेल में देखना है कि array list क्लास कैसे बिहेव करेगा, बाकी भी सब कैसे बिहेव करेगा। So this is all about this program। Next thing is array list। Now what is array list? Array list is a dynamic array based data structure provided by the Java Collections framework। It's a part of, again it is a part of java.util package and is commonly used for strong and manipulating a list of objects। Unlike regular arrays, array list automatically resize itself to accommodate a varying number of elements। देखिए, when I am using array, suppose I have declared an array of 10 elements, then that 10 elements is the binding for that array। Maximum elements you can store by using that array is 10 elements only। It is not possible to include 11th element। This is one thing। Second thing is, suppose there is a 100 element array and we are processing only 4 elements, so other 96 memory locations are unused। So instead of that, if you are using array list, it is not possible to expand or what you can say minimize the size of array। इनको एक्सपांड या मिनिमाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट हो जाएगा मीन्स व्हाट, कि आपने जो भी समझो array में मुझे 10 एलिमेंट ऐड करने हैं, इट इज पॉसिबल टू ऐड 10 एलिमेंट्स डायरेक्टली। अगर मुझे array में के 2 एलिमेंट निकाल देने हैं तो 2 एलिमेंट मैं निकाल भी सकता हूँ। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द, अब हर एक इसमें कुछ की फीचर्स रहेंगे। तो अरे लिस्ट का क्लास के की फीचर्स क्या है? एक तो ये ऑर्डर्ड है, दूसरा इट अलाउज द डुप्लीकेट एलिमेंट्स। जैसे कि आपने हैश सेट में देखा था, इट विल नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट, बट अरे लिस्ट क्लास अलाउज द डुप्लीकेट एलिमेंट्स एंड दीज आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। थ्रेडिंग के लिए ये ज़्यादा सेफ नहीं है। थ्रेडिंग का कंसेप्ट हमने पिछले शायद वीडियो लेक्चर में देखा था। सो नॉट थ्रेड सेफ बट नॉट सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड नहीं है एरे लिस्ट।
अब और क्या क्या हो सकता है, ये जो हमने जो की फीचर्स दिखे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस की फीचर्स व्हाट आर द एडवांटेजेस? फर्स्ट एडवांटेज इज डायनामिक साइजिंग. Array list automatically resizes itself as you add or remove the elements. मीन्स ऐड करने के लिए या डिलीट करने के लिए साइज ऑटोमेटिकली वो एक तो बढ़ाएगा या तो फिर कम करेगा. सेकंड थिंग इज retrieving elements from the or retrieving element by the index is efficient and has constant time complexity O of 1. I think all of you have gone through complexity of the algorithm. किसी की O log n रहती है, किसी की O1 रहती है, तो एरे लिस्ट यूज़ करो या एरे यूज़ करो, दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो O1 ही रहेगी. नेक्स्ट थिंग इज यूटिलिटी मेथड्स. मीन्स एरे लिस्ट क्लास के साथ बहुत सारे ऐसे मेथड है थ्रू विच इट इज़ पॉसिबल टू सर्च द एलिमेंट, इट इज़ पॉसिबल टू डिलीट द एलिमेंट, इट इज़ पॉसिबल टू इंसर्ट द एलिमेंट इन दैट एरे लिस्ट. पिछले ही प्रोग्राम में हमने देखा कि एरे लिस्ट हमने लिया था और उसमें डायरेक्टली ऐड करके नंबर ऐड किया था. सो देयर आर सम यूटिलिटी मेथड्स आल्सो. इंसर्शन डिलीशन क्या, अब डिसएडवांटेज अगर कोई पूछेगा तो इंसर्शन और डिलीशन जो है ना, वो अगर आप पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट या डिलीट करना चाहते हो या मिडल ऑफ द लिस्ट में इंसर्ट या डिलीट करना चाहते हो तो दैट कैन बी स्लो, लेकिन इतना भी स्लो नहीं है कि आपको पता चले. फॉर लार्ज नंबर ऑफ लिस्ट इट इज समवट टाइम कंज्यूमिंग जॉब बाय यूजिंग एरे लिस्ट क्लास. नेक्स्ट थिंग इज मेमोरी ओवरहेड ज़्यादा है एरे लिस्ट क्लास का. मेमोरी ओवरलोड मीन्स व्हाट कि number of bytes which are required to store are somewhat more than array. Why? Because it is used to store some additional information about that particular array list class also. So there are more advantages over disadvantages. array list class के advantages ही ज़्यादा है disadvantage से, इसलिए array list it is a widely used dynamic array based data structure in Java. डायनामिक मीन्स व्हाट, रन टाइम में वो साइज कम या ज़्यादा करेगा. इट्स एफिशिएंट फॉर रैंडम एक्सेस एंड प्रोवाइड्स डायनामिक साइजिंग, बट इट माइट नॉट बी द बेस्ट चॉइस फॉर सिनेरियोज विथ फ्रीक्वेंट इंसर्शंस एंड डिलीशंस. मैंने आपको पहले ही कहा था कि मिडल में या किसी पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना है तो एरे लिस्ट क्लास समवॉट प्रोसेसिंग स्पीड जो है उसकी वो शायद कम हो सकती है, या मिडल ऑफ द लिस्ट में अगर कोई एलिमेंट आपका इंसर्ट करना है तो. नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ एरे लिस्ट क्लास. यहाँ पे भी हमने क्या क्या किया है वो देख लीजिए, थोड़ा फास्ट में देख लीजिए. यहाँ पे हमने क्या क्या किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिल डॉट एरे लिस्ट, यहाँ पे पर्टिकुलर एरे लिस्ट ही हमने इंपोर्ट की है. देन एरे लिस्ट एग्जाम्पल हमारे प्रोग्राम का नाम है. एरे लिस्ट इंटीजर की है, नाम इंटीजर है, एरे लिस्ट है और साइज हमने डिफाइन नहीं किया. नंबर्स डॉट ऐड 10 20 30 40 किए हैं, एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे सभी. सेम फॉर लूप है जो हमने पिछले प्रोग्राम में यूज किया था. फॉर इंटीजर, फॉर ईच इंटीजर नंबर इन नंबर्स, नंबर सेपरेट है, नंबर्स वो ऊपर की लिस्ट. तो ये फॉर ईच लूप है. फॉर ईच नंबर इन नंबर्स, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर. नंबर्स जो लिस्ट है उसमें से हर एक एलिमेंट को निकाल के नंबर में स्टोर करके उसको प्रिंट करेगा. देन इंटीजर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू नंबर्स डॉट गेट ऑफ 0. मीन्स आपको उस नंबर्स नाम का जो आपने एरे लिया है या एरे लिस्ट ली है उसमें से आपको पहला एलिमेंट रीड करना है. मीन्स और वो कहाँ पे स्टोर करना है, फर्स्ट नंबर में. यहाँ पे दिया है इंटीजर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू नंबर्स डॉट गेट ऑफ 0. नंबर्स लिस्ट है, डॉट गेट रीड करो कौन से इंडेक्स का, 0 इंडेक्स का. तो पहला एलिमेंट जो भी रहेगा ना वो उसमें प्रिंट हो जाएगा. अब दूसरा यहाँ पे ये तो हो गया कि गेट कैसे करना है.
कौन से भी इंडेक्स की वैल्यू आप गेट कर सकते हो। सेकंड थिंग इज नंबर डॉट सेट 1,25। अब इसका मीनिंग क्या है कि ये जो एरे लिस्ट है जिसमें 0 1 2 3 नंबर्स है, इट स्टार्ट्स विद 0 ऑलवेज। सो 10 20 30 40 मीन्स नंबर्स ऑफ क्या बोलते हैं आप उसको, नंबर्स डॉट गेट ऑफ 0 क्या हो गया 10, नंबर्स डॉट गेट ऑफ 0 क्या होगा 20, 2 क्या होगा 30 और 3 क्या होगा 40। उसमें पहला नंबर जो है 20 वाला, उसको मैं 25 से अगर रिप्लेस करना चाहता हूँ तो इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ नंबर्स डॉट सेट। पहला है इंडेक्स और दूसरी है वैल्यू। पहले इंडेक्स की वैल्यू 25 कर दो जो कि ऑलरेडी 20 है, ठीक है। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नंबर्स, अब यहाँ पे हमने फॉर लूप लिया था, यहाँ पे पूरे नंबर्स वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद नंबर्स डॉट रिमूव, अब यहाँ पे हमने एलिमेंट रिमूव किया है, कौन सा, इंटीजर्स में वैल्यू ऑफ अगर 30 है किसी एलिमेंट की वैल्यू तो वो नंबर हमने डिलीट कर दिया। सो आफ्टर रिमूविंग 30 फिर हमने नंबर्स को प्रिंट किया। अब ये कंटेन्स 40 नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया। कंटेन्स 40 मीन्स व्हाट, वेदर दिस लिस्ट कंटेन्स 40 नंबर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने 40 ऐड किया है। आफ्टर रिमूविंग 30 अब ये एरे लिस्ट हमारी हो गई है 10 20 एंड 40 ओनली। तो 40 नंबर है क्या वो देखने के लिए नंबर्स डॉट कंटेन्स ऑफ 40, और यहाँ पे क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कंटेन्स 40 प्लस कंटेन्स 40 मीन्स इफ इट इज अ ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू वैल्यू, इफ इट इज अ फॉल्स की कंटेन्स नहीं है तो वो डेफिनेटली फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। इसके बाद हमने एक साइज ली है कि एरे लिस्ट की साइज क्या है, जैसे साइज ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन था C++ में, which is used to calculate either size of data type or size of array also. In same way here you can see वो साइज बाइट्स में देता था, यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद मैंने लिखा है नंबर्स डॉट क्लियर, क्लियर मीन्स नंबर्स निकल जाएंगे। आफ्टर क्लियरिंग आपके जो भी नंबर होंगे वो आ जाएगा। बुलियन इज एम्प्टी इज इक्वल टू नंबर्स डॉट इज एम्प्टी, और उसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रू आएगी क्योंकि हमने एरे को ऑलरेडी क्लियर किया है। सो दिस इज अगेन अ सिंपल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मैंने भी ऑलरेडी लिख के रखा है, सो आई विल ओनली शेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। उस प्रोग्राम का नाम हमने क्या लिखा था, 1 मिनट, प्रोग्राम का नाम .java एरेलिस्ट एग्जाम्पल .java। अगर आपने वहाँ पे देखा होगा तो हमारे क्लास का नाम एरेलिस्ट एग्जाम्पल था, इसलिए प्रोग्राम का नाम भी एरेलिस्ट एग्जाम्पल ही लिया है। सो जावासी एरेलिस्ट एग्जाम्पल .java, so there is no error, java array list example। तो हमने 10 20 30 40 ऐड किए थे, आपको अगर याद होगा तो या स्क्रीनशॉट निकाल के भी आप देख सकते हो। उसके बाद हमने फर्स्ट एलिमेंट की जो वैल्यू थी, जो हमने नंबर्स डॉट गेट ऑफ 0 लिखा था, तो वहाँ पे ये 10 वैल्यू आ गई। फिर हमने फर्स्ट लोकेशन में एरे के सेट किया था 25, तो पहले एरे लिस्ट क्या थी 10 20 30 40, ये हमने फॉर लूप में लिखा था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन था इसलिए एक के नीचे एक आ गया। लेकिन उसके बाद हमने खाली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर्स लिखा था। सो व्हाट इज नंबर्स, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आए हैं ना वो उसका आउटपुट है। सो मॉडिफाइड एरे लिस्ट इज 10 20 निकल गया, 35 25 एंड 40, बीच में हमने 30 भी रिमूव कर दिया था। देन कंटेन्स 40, वेदर दिस एरे कंटेन्स 40 ट्रू, अगर नहीं होता तो ये फॉल्स दे देता। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंटेन्स 40 की जगह कंटेन्स 50 करके देखेंगे हम। मैं डायरेक्ट नोटपैड में इसको चेंज कर लेता हूँ। कहाँ पे चेंज करना है हमें, 1 मिनट।
array list example डॉट जावा, और ये जो कंटेंट्स है ना, कंटेंट्स 40 वेरिएबल है, मैं एज इट इज रखता हूँ, खाली वहाँ पे 50 कर लेता कि वेदर इट कंटेंट्स 50। तो हमारे एरे लिस्ट में तो 50 नहीं है, मैं इसको सेव कर दिया प्रोग्राम को। नाउ cls जावा सी एरे लिस्ट एग्जाम्पल डॉट जावा, जावा एरे लिस्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो कंटेंट्स 50, अभी 40 लिखा था तो ट्रू आया था, नाउ कंटेंट्स 50 फॉल्स आया है। साइज ऑफ एरे लिस्ट 3 ही है, 10, 25 एंड 40। 30 हमने रिमूव किया था इसलिए वो रिमूव हो गया। आफ्टर क्लियरिंग एरे लिस्ट में कुछ भी नहीं बचा। इज एरे लिस्ट इज एम्प्टी, यस इट इज ट्रू। मीन्स आफ्टर क्लियरिंग अगर मैं कुछ ऐड कर देता तो ये इज एरे लिस्ट एम्प्टी हमारा फॉल्स आ जाता। सो it is all about array list class which is present in Java. So in next lecture we are going to see, अभी हमारा बहुत सारे टॉपिक्स है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स बचे भी है, कौन से वो हम शॉर्ट में देख लेते हैं। सो कलेक्शन एंड इंटरफेस इज ओवर इन टुडेज वीडियो लेक्चर, collection interface and array list is over in this today's lecture. Tomorrow we will see vectors, generics, iterators. All these three we are going to cover. All or at least two vectors and generics are to be covered in next lecture. So thank you very much for watching this video. If you like the video, then kindly share the channel with your friends. Thank you very much.